डेड बॉडी हमें मित्याज, यहाँ हमारा गांव है कोडीनार का, वहाँ से फाटक निकलता है, वो मजौड़ी बोलते हैं, उस रास्ते पर मिली है हमें ऊना रोड पर। और इसकी उम्र शायद 90 के आसपास है, उसके आसपास के लोग बोलते हैं। और उसके पहचान वाले लोग भी उसके गांव के, ये महाराष्ट्रियन मजदूर है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट यानी नासिक डिस्ट्रिक्ट के मजदूर है। ये जो औरत थी माजी, उसकी शायद उम्र 90 के आसपास है, वो लोग बोलते हैं। उसका मर्द भी નમસ્કાર મિત્રો, આજે 28 એપ્રિલ રવિવાર હોય મિત્રો, વહેલી સવારના જ ફોન આવ્યો કે ભાઈ મજેવડી અને મિત્યાજનો રસ્તો જતો હોય ત્યાં એક તળાવ છે, ત્યાં એક પાડા ઉપર ઝૂંપડું બાંધીને વર્ષોથી રહે છે. આની પહેલાં પણ એના જે પતિ ઓફ થઈ ગયા હતા એની પણ લાસ્ટનો અંતિમ સંસ્કાર અમારી સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, ગુરુ નાનક સિંધી યુવક મંડળ અને હરિઓમ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા. તો આજે એ આઈ પણ મરી ગયા છે, એટલે કે માજી જે મોટી ઉંમરના હોય, બીમારી સબબના કારણે એ મૃત્યુ પામેલ હોય અને આશરે ઉંમર 90 વર્ષની હોય, એ મૃત્યુ પામેલ હોય. તો આજે તેઓને એના વાલી વારસદાર પછી એના સમાજના એને સાથે રાખી અને અંતિમ સંસ્કાર કરવાનું હોય. મિત્રો, નરસિંહભાઈ, તમે આ વિસ્તારમાં જ રહો છો કે? અમારી આગળ વાડી આવી ગઈ. આ લોકો અંદાજે કેટલા વર્ષથી રહી છે? 15-20 વર્ષ થઈ ગયા. 15-20 વર્ષથી રહી છે અને છૂટક મજૂરી કરે છે. આની પહેલાં પણ જે અહીંયા એક બાપા ઓફ થઈ ગયા હતા, એ પણ 80-90 વર્ષના હતા, એની પણ અંતિમ સંસ્કાર કર્યો હતો. આજે આ માજી મરી ગયા છે, એને અંદાજે કેટલીક ઉંમર હશે? આની લગભગ 90 વર્ષની તો આસપાસ. એમ ને? અને આને શું, આનું નામ શું? આજે ઓફ થઈ ગયાનું નામ શું છે? શું નામ છે? બોલો તો ખરી કોક. બાઈજા. કયા ગામના છે? મહારાષ્ટ્ર. ગામ સતાણા કે નાસિક જિલ્લો? તો હવે આનો અંતિમ સંસ્કાર આપણે હિન્દુ રિવાજ મુજબ કરી નાખવું જ ને, સમસાણે. બરાબર ને? કોઈ નથી, પણ તમે તો છે ને અમે તમારી આરે છીએ, બરાબર? ખાસ કરીને એક વસ્તુ જાહેર કરું છું કે જે મહારાષ્ટ્રથી અહીંયા સુગર ફેક્ટરીના કામ માટે કે શેરડી કાપવા માટે કે દાળિયા માટે જે લોકો અહીંયા લાવે છે, એ લોકોની જવાબદારી હોય છે એને સુરક્ષિત પાછા મહારાષ્ટ્ર પહોંચાડવાની. પણ એ લોકો પણ શું કરે, કારણ કે આ લોકો અહીંયા આવ્યા પછી એના દેશ જાતા જ નથી ને આઈને અહીં રહી છે. हाथ भट्टी का बनाए हुआ पीते रहते, ऐसे ही रहते हैं, साथ में पीते साथ में खाते, जब मर जाते तब सब लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो महाराष्ट्र के लोगों को भी विनती है हमारी कि तुम्हारे जो भी लोग आए और 1 बरस के बाद न आए तो उसकी तपास करवाओ कि वो कहाँ है. और यहाँ के लोग जो मुकादम है, जो गढ़ बनाने का राबड़ा होता है, वो लोग भी जो मजदूर लोग को लेके आते तो उसकी यादी बनाए, उसके खेत में रखे, उसके पास रखे. और कहीं भी घूम के ये लोग कहीं भी रहते हैं, ऐसे जंगल देखो, जंगल दिखाओ. ये लोग भी इंसान है. ये लोग चालू किया, ये लोग यहाँ 15-20 बरस से रहते हैं. क्या उसका कोई वाली वारसदार महाराष्ट्र में नहीं होता? क्या उसका कोई परिवार नहीं होता? महाराष्ट्र वालों को भी मेरी विनती है कि उसका भी ध्यान रखो. આરામથી લઈ લે, એંગલ બદલાય. ये बेन
ने अच्छा काम किया, आपने भी अच्छा काम किया। चालू रख भाई। बरोबर आहे ना? ठीक आहे ना बहिणा? हा आल्या એ ડોહી મળી ગઈ, હવે એને ભારી લાગી. ભગવાન ભગવાન હવે આ હીડામાં રાખી દે ઘડી, હા રાખી દે બરાબર ને બાપા? લાવ્યા સારું થયું મારો ભગવાન, તમે પાણી લાવ્યા સારું થાય. આવી જાઓ બાપા. પાણી લાવ્યું. આવી રીતે આ લોકો મહારાષ્ટ્રના લોકો ખાણે ખૂચે જંગલમાં ગમે ને પડ્યા રહી છે. ખૂબ જ દુઃખની વાત છે કે આ લોકો અહીંયા કામમાં આવે છે, પણ કામી ને ફક્ત પીએ જ જવાનું છે. આ લોકોને કામીને કોઈથી ક્યારેય ભેગું કર્યું નહીં ને પાછા અહીંયા આવે એટલે વતનમાં નથી જતા, અહીંયા જ રહે છે. और उसके पहचान वाले लोग भी उसके गांव के, ये महाराष्ट्रियन मजदूर है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट यानी नासिक डिस्ट्रिक्ट के मजदूर है. ये जो औरत थी माजी, उसकी शायद उम्र 90 के आसपास है, वो लोग बोलते हैं. उसका मर्द भी 3-4 साल पहले हम उसकी भी डेड बॉडी लेकर आए थे यहाँ पर. इसका कोई रिश्तेदार था नहीं और कोई पहचान वाले भी नहीं थे. वो जो खेत वाले हैं जहाँ रहती थी वो औरत, वो खेत वाले उसको उसकी संभाल रखता था, उसको भोजन भी देता था. और आज हमें ये एक रिंग आई मोबाइल की और हम डेड बॉडी लेके आए. मेरे साथ हरिओम सेवा ट्रस्ट के प्रमुख जयेश भाई मेरवी है, गुरु नानक सेवा मंडल की ओर से मैं रमेश बजाज हूँ, और हमारे रिक्शा वाले भी है योगेश बापू, वो भी सेवा देते हैं. और हमारे शमशान में जो सेवा देते हैं म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी है, वो किशन भाई भी है हमारे साथ सोलंकी. मेरे कहने की बात ये है कि 20 तारीख से लेकर आज 28 तारीख है, 20 तारीख से लेकर 28 तारीख में ये 4वीं लाश में आई है. 4वीं लाश यानी चौथी लाश आई है. तो ये लोग मजदूरी होते हैं. पहले एक लाश आई थी, उसका पता चला कि ये मध्य प्रदेश का मजदूर है, उसका भी कोई पहचान वाले नहीं आए, रिश्तेदार नहीं आए. वो लाश भी हमने जला दी 20 तारीख पे. और उसके बाद 3 दिन में ये महाराष्ट्र मजदूर की लाश आई है. ये आज पहचान वाले लोग आए हैं, कभी आते भी नहीं, ये डर के मारे भाग जाते हैं. ये लोग शायद 99% डर के मारे भाग जाते हैं, हमारे साथ भी नहीं आते हैं. उसको डर लगता है, पुलिस डिपार्टमेंट का डर लगता है और भी दूसरा भी डर लगता है, ये नहीं आते हैं. तो मेरे सज्जनों कोडीनार शहर के कहने की बात ये है, ये हमें इस मोबाइल के ज़रिए से आपको इसीलिए सुनाना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि लोगों को पता चले कि हम पुलिस को जानकारी देकर ही ये लाश लाते हैं. पुलिस की जानकारी बिना हम लाश लाते भी नहीं है, क्योंकि जानकारी दे देते हैं कि ये मजदूर थे, बीमारी के सबब से और उम्र के सबब से ये इसकी डेथ हुई है. मेरे प्यारे सज्जनों, कि हमारे पास दूसरी भी 2-3 सेवा है. मैं बार बार ये कहना इसीलिए चाहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हमारे पास एक एम्बुलेंस चल रही है, वो फ्री सेवा में चल रही है. 30 किलोमीटर की आसपास किसी की भी डेड बॉडी हो, डिलीवरी का केस हो, और किसी को भी कहीं भी हॉस्पिटल में दिखाने जाना पड़ता है, तो हमारे एम्बुलेंस का यूज़ करें. उसका नंबर भी लिखा हुआ है और दिया हुआ है. और दूसरा, हमारे पास एक एयर कूलर भी है. एयर कूलर बड़ा है, 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट का है. वो उसका कूलर में डेड बॉडी भी रहती है, वो भी कोई यूज़ कर सकता है. अगर किसी के वहाँ डेड बॉडी हो, NRI हो, बाहर रहते हो, आउट ऑफ स्टेट में रहते हो, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं. धन्यवाद. ओके, हालो.